Hello students, good morning to everyone. In this video, we start our new chapter. It is chapter number 5. Okay, the name of the chapter is Skewness of Frequency Distribution. This is one other important term for frequency distribution. First of all, we learn about the measures of central tendency in chapter number 3. After that, we learn about the measures of dispersion in chapter number 4. And here we learn about skewness of frequency distribution. Okay, so here first of all, I read the introduction part. Measures of central tendency and dispersion give important information about the population under study. Okay, measures of central tendency and dispersion gives the important information with respect to population under study, right? These measures give the information about the values assumed by the units of population, and moreover a comparison of two or more population and an analysis to obtain the other information is possible using these measures. We have studied the nature of population observations by these measures. So here first of all, it is given that the uses of measures of central tendency and dispersion. Okay, these two terms gives the important information regarding the comparison of two or more population and analysis to obtain the other information. Okay, the measures of central tendency and dispersion gives us partial information of central tendency and dispersion of observation around the central tendency measure of raw data. Okay, that means how all the observation distributed around the central values that we can find from the measures of centrality and from the dispersion, but we get the little information. If we want to find out the full information and if we want to do the full analysis of the data, that means how the data is distributed around this central value. Okay, measures of central tendency means what? It gives the one it gives one central value which represents all the data, right? And dispersion means how the observations, how much difference observations have from this central value. That is our dispersion, right? But from these two terms, it gives the little much information how the data are distributed. If we want to, if we want the complete distribution, if we want to get the complete information regarding this, so we need to use our new term. It is skewness of frequency distribution, and for that we need to use the and for that we need to use the frequency curve. ओके, ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन है वो ये तो बताते हैं कि ऑब्जर्वेशंस है वो कितने आसपास फैले हुए हैं, बट उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाना पड़ेगा। वो कर्व पे से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन है और डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे कितने ज्यादा है, वो हमें पता करना है। तो उनके लिए हमें फ्रीक्वेंसी कर्व चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, कैसे वहां से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। सो हियर टू गेट इंफॉर्मेशन more about this, population is represented by frequency curve. Okay, frequency curve से represent किया जाता है। thus the direction and shape and form of frequency curve can be studied from the frequency curve of the frequency distribution. उनका डायरेक्शन कैसा है, शेप कैसा है, फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो कहाँ से पता चलेगा हमें, वो कर्व हम जब हम स्टडी करेंगे उनके बेसिस पे। सो विल स्टडी द थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर कॉल्ड स्क्यूनेस टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, मतलब जो हमने पूरे सेट में से जो पॉपुलेशन सिलेक्ट किया है उनका उनकी हमें स्टडी करनी है, तो ये तीसरा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है स्क्यूनेस। ओके, अभी आपको जैसे हम कर्व सीखेंगे वहां से पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ओके, लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। सो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हो है फ्रीक्वेंसी कर्व कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है।
Okay, so first of all, first type it is given to us symmetric frequency distribution. Okay, symmetric frequency distribution, that means all the datas are equally distributed around the mode. Okay, that means here we have mode, and on both the side of mode we have the equal frequencies. Okay, and we have equal shape. This is symmetric frequency distribution. In symmetric frequency distribution, x bar, that means mean, median and mode, all three are same. Okay, mean, median and mode, all three are same, and data are equally distributed around the mode. Okay, so here it is written that a frequency distribution in which observation of population are evenly distributed on both the side of the mode is called symmetric frequency distribution. ओके, दोनों साइड पे सेम फ्रीक्वेंसी हो, मोड की दोनों तरफ सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो उनको बोला जाता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एंड जनरली द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू बी बेल शेप. ये शेप कैसा होता है? बेल शेप, बेल जैसा ऐसा होता है, राइट, टेम्पल में. तो ये शेप कैसा रहता है? बेल शेप, राइट, जो टेम्पल में हमें देखने को मिलता है उस टाइप का शेप यहाँ पे होता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. We shall study the concept of symmetry by the frequency curve and measures of central tendency using the illustration of frequency distribution of daily wages. That means हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो ड्रॉ किया गया है. और इस कर्व पे से हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ ये एग्जैक्ट सेंटर में मीन मीडियन मोड है, जो तीनों एक ही पोजीशन पे है, राइट, और दोनों ही तरफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मीन्स बोथ साइड इक्वल शेप एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो हमने ऑलरेडी मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड किया जाता है वो तो हमने सीख ही रखा है, राइट. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है उनके बेसिस पे यहाँ पे फाइंड किया गया है मीन मीडियन मोड एंड क्वार्टाइल्स. वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में सीख चुके हैं. यहाँ पे आप मीन का आंसर देखो तो आ रहा है 800. ओके, मीडियन का आंसर देखो तो वो भी है 800, मोड का आंसर देखो तो वो भी है 800. डेट मीन्स मीन, मीडियन एंड मोड तीनों का आंसर जो है वो सेम है. ओके, और यहाँ से Q1 और Q3 फाइंड करो. तो Q1 का आंसर है 600, Q3 का आंसर है 1000, राइट. सबसे पहले क्या आता है? Q1, वो है 600. उसके बाद क्या आता है? Q2 और मीडियन दोनों सेम ही होते हैं, इसका आंसर है 100. और Q3 उसका आंसर आया है 1000. ओके, ये आंसर हमने मीडियन पे से लिखा है क्योंकि मीडियन और Q2 तो सेम ही होता है. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, तो वो है इन दोनों का डिफरेंस सेम है. 800 माइनस 600 वो है 200, और 1000 माइनस 800 वो भी है 200. मीन्स दोनों ही तरफ अब डिफरेंस देखो तो सेम है. फर्स्ट क्वार्टाइल का मीडियन से और थर्ड क्वार्टाइल का मीडियन से डिफरेंस भी सेम है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है वो कैसा है? सिमेट्रिक. तो ये जो है वो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है. ये तीनों सेम होते हैं, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड तीनों सेम होते हैं, और दोनों ही क्वार्टाइल्स का मीडियन से जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है, राइट. 1000 माइनस 800 एंड 800 माइनस 600 बोथ आर सेम. एंड शेप कैसा रहता है? बेल शेप. सो ये थ्री मेन प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. एक तो ये तीनों सेम होंगे, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का मीडियन से डिफरेंस सेम होता है, और शेप जो रहता है वो बेल शेप. ये थ्री प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट. तो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एग्जैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हमें देखने को मिलेगा, राइट. दोनों ही साइड पे आप कंपैरिजन करो तो सेम शेप देखने को मिलेगा, सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा. ओके, मतलब यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं. सो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज लिखी है. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर जनरली ऑब्जर्व इन सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन, मीडियन, मोड have same value, and first quartile and third quartile are at equal distance from the median. Q3 minus M and M minus Q1 both are equal. Here in number 3,
द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू बी बेल शेप. शेप कैसा रहता है? बेल शेप. एंड फोर्थ वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन at equal distance on both the side of mode is equally distributed. मीन्स मोड के दोनों ही साइड पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम ही होगी. ओके. नाउ इफ द above characteristics are absent in any given frequency distribution, okay, if the above characteristics are absent in any given frequency distribution, then it is said that the frequency distribution is not symmetric. That means इन चारों में से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुई तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा. ओके. यहाँ पे मेन क्या है कि चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं हुई तो फिर ये फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. मतलब कोई एक कैरेक्टरिस्टिक ना हो तो वो जो खामी रह जाती है उसकी वजह से ये बोला जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट दोनों ही साइड पे प्रॉपरली नहीं है. तो वो जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. स्क्यूड दैट मींस डिफरेंसेस. ओके. बोथ साइड पे जो डिफरेंसेस रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो ये है स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस. दैट मींस अब यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या स्क्यूनेस, उसका मीनिंग अब थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि दोनों ही साइड पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एग्जैक्ट प्रॉपरली हुआ है. ओके. अब ये प्रॉपरली नहीं होगा. मान लो कि ये प्रॉपरली नहीं है मतलब सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर कितना डिफरेंस आ रहा है वो जो पता चलेगा स्क्यूनेस. ओके. यदि ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके, सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या डिफरेंसेस रह जाते हैं वो पता चलते हैं स्क्यूनेस से. ओके. तो यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि मीन, मीडियन और मोड सेम नहीं होंगे. इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होगा Q1 और Q3 का. राइट एंड लेफ्ट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज मोर elongated, right? That means here this figure is given to you. This is symmetric frequency distribution in that both the tails are same, but sometimes what happen, the frequency distribution is like this. That means here this is, if we see here, then right hand side the tail is more extended, right, elongated. Sometimes it happens that frequency distribution is like this. That means sometimes left hand side tail is more elongated. ओके. डेट मीन्स खींचा हुआ एक तरफ से. ओके. कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो टेल एंड है उस ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा. समटाइम्स राइट हैंड साइड जो टेल पोर्शन है वो ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा लाइक दिस. ओके. बट आप सिमेट्रिक में देखो तो दोनों ही टेल्स को इक्वली खींचा हुआ रहता है, इसलिए वो सिमेट्रिक है. बट जब ऐसा देखने को मिलेगा तब स्क्यूनेस देखने को मिलेगा. मतलब आपको ये ढूंढना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक से कितना डिफरेंस है. ओके. कितना डिफरेंट जा रहा है वो पता चलेगा स्क्यूनेस से. अब बेस्ड ऑन दैट टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, ओके, द अबव कंडीशन are called the test of skewness as they check whether the frequency distribution is skew or not. Now we need to study the types of skewness. Here we have two types, positive skewness and negative skewness. Okay. There are two types of skewness of frequency distribution, positive skewness and negative skewness. We understand these two types with the diagram and illustrations. So first of all, positive skewness. अब पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा कि राइट हैंड साइड का जो टेल एंड है वो आपको ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा. ये है पॉजिटिव स्क्यूनेस. ओके. राइट हैंड साइड जो टेल पोर्शन है वो ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा, उनको बोला जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस. हियर इट इज रिटन दैट if the right tail of the frequency curve of a distribution is more elongated, then it is called positive skew distribution. The population is said to possess positive skewness due to this characteristics.
ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। ओके, राइट हैंड साइड पे ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ओके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे दिया गया है, उनके बेसिस पे वैल्यूज फाइंड करो। मीन की तो मिलेगी 4.62, मॉड मिलेगा 3, मीडियन का आंसर आएगा 4, Q1 का आंसर है यहाँ पे 3 एंड Q3 का आंसर है वो है 6 है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेंगे? जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होगी कि मीन का आंसर सबसे ज्यादा होगा, फिर मीडियन का और फिर मॉड का। क्योंकि मीन तो एग्जैक्टली क्या है कि जहां पे वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे मीन उस तरफ ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा, मतलब जिस जिस साइड पे एंड को ज्यादा खींचा हुआ है उस साइड पे मीन वो भी खींचा जाएगा, क्योंकि जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उस डायरेक्शन में मीन मूव करता है, क्योंकि मीन में सभी ऑब्जर्वेशंस को काउंट किया जाता है। राइट, तो मीन जो है वो एग्जैक्ट सेंट्रल में ही रहने की कोशिश उनकी रहती है। मीन जो है वो हमें सेंट्रल वैल्यू पे ही मिलता है। बट मीडियन है उनका क्या है कि जहाँ पे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होंगे वहां पे मीडियन के होने का चांसेस ज्यादा है और मोड होने का चांसेस उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर हमें मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि एक्स बार का आंसर ज्यादा होगा मीन से और मीन का मोड से, और जो Q3 माइनस एम है, Q3 माइनस एम वो भी आपको ज्यादा मिलेगा M माइनस Q1 से। ओके, राइट हैंड साइड पे ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा आपको, क्योंकि पहले क्या आता है Q1, फिर आता है M और Q3। राइट, सो राइट हैंड साइड का टेल एंड खींचा हुआ होगा तो ये डिस्टेंस हमें ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू Q1 माइनस एम। सो Q3 माइनस एम जो है, Q3 और M का डिफरेंस वो ज्यादा रहेगा M और Q1 के डिफरेंस से। ओके, the right tail of the frequency curve is more elongated. Thus, the following characteristics are generally observed in positively skew frequency distribution. So, positively skew frequency distribution की क्या characteristics है? तो वो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि x बार ज्यादा होगा, फिर मीन, मीडियन और फिर मोड। ओके, मीन, मीडियन और मोड सबसे ज्यादा रहेगा मीन, देन मीडियन एंड देन मोड। और डिस्टेंस के बारे में देखें तो Q3 माइनस एम वो ज्यादा रहेगा M माइनस Q1 से। राइट, हम यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहे हैं इसलिए Q3 माइनस एम लिखा है, क्योंकि Q3 का आंसर M से ज्यादा होता है। फिर M माइनस Q1 लिखा है क्योंकि M का आंसर यहाँ पे ज्यादा होता है विथ कंपेयर टू M, सॉरी विथ कंपेयर टू Q1। ओके, सो Q3 माइनस एम उन दोनों का डिफरेंस और M माइनस Q1 उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो ये डिफरेंस हमें ज्यादा मिलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे एंड को खींचा गया है। द राइट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर elongated। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिव स्क्यूनेस की। कौन कौन सी? मीन का आंसर ज्यादा, देन मीडियन, देन मॉड। डिफरेंस किसका ज्यादा रहेगा? Q3 माइनस एम का। ओके, डिस्टेंस उसका ज्यादा रहेगा और राइट हैंड साइड पे मोर एलोंगेटेड मिलेगा। नाउ नेगेटिव स्क्यूनेस में ठीक इससे उल्टा आएगा। ओके, हियर वन नोटिस दैट we find more variation in the observations to the right of the mode in a positively skewed distribution. That means positive skewness is found in the frequency distribution of number of details। ओके, ज्यादा ये कहाँ पे हमें मिलेगा? जहाँ पे नंबर ऑफ डिटेल्स होगी वहां पे। अब नेगेटिव स्क्यूनेस जो आएगा वो ठीक पॉजिटिव स्क्यूनेस से डिफरेंट आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड है वो ज्यादा खींचा हुआ रहेगा। ओके, उनकी वजह से मीन, मीडियन, मोड के आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। मीन का आंसर सबसे कम हो जाएगा, देन मीडियन का, और सबसे ज्यादा रहेगा मोड का। सबसे ज्यादा मोड फिर मीन, सॉरी सबसे ज्यादा मोड फिर मीडियन और फिर मीन, उल्टा हो जाएगा पूरा। ओके, in the left tail of the frequency curve of a distribution is more elongated, then it is called negatively skewed distribution. Such a population is said to possess a negative skewness। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इनके भी हम वैल्यूज फाइंड करें तो मीन है 14.27, मीडियन 15, Q1 10, Q3 18 और मोड है 17। अब यहाँ पे आप आंसर्स चेक करो तो ऑर्डर है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मोड का आंसर ज्यादा रहेगा, फिर मीडियन का और फिर मीन का। ओके, पॉजिटिव में क्या था? मीन ज्यादा था, देन मीडियन और देन मोड। बट यहाँ पे उल्टा, मोड ज्यादा, देन मीन एंड
सॉरी मोड सबसे ज्यादा, देन मीडियन एंड देन मीन। वहां पे राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो खींचा हुआ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का होगा। और वहां पे Q3 माइनस एम ज्यादा था, यहाँ पे M माइनस Q1 ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा खींचा गया। जिस साइड पे ज्यादा खींचा जाएगा वहां पे डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे खींचा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है Q1। ओके, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा यदि लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा खींचा हुआ रहेगा तो। ओके, तो यहाँ पे भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगी कि सबसे पहले तो यहाँ पे मोड का आंसर ज्यादा होगा मीडियन से, और मीडियन का मीन से। लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा, और M माइनस Q1 का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। Okay, so following characteristics are generally seen in the negatively skewed distribution. First one is order of mean, median and mode. Mode ज्यादा, then median, then mean. डिस्टेंस के बारे में देखें तो M माइनस Q1 ज्यादा होगा Q3 माइनस M से, और लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो ज्यादा खींचा हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखो आप, पहले Q1 है, देन मीडियन है और Q3 है। यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है। और पोजीशन भी देखो, मीन का कम, देन मीडियन और देन मोड बढ़ते जा रहा है। So one notice is given to us here. We find more variation in the observations to the left of the mode in a negatively skewed distribution. Many cases related to business and finance have negatively skewed frequency distribution. Okay, here some examples are given to you. In the cases of related with the business and finance, in that case negative skew distribution is used. Example, negatively skewed distribution curve is found in the frequency distribution of price of a certain item and number of investors. Okay, number of investors ज्यादा होंगे तो प्राइस, सॉरी नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा रहेंगे तब, और प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स, ऐसे केसेस में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज ज्यादा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कैसा रहता है, और दूसरा नेगेटिव स्क्यूनेस जो है वो कैसा रहता है। अब इसके बाद हम ये सीखने वाले हैं कि स्क्यूनेस कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, हमें ये तो पता चला होगा कि स्क्यूनेस का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। ओके, ये सिमेट्रिक हुआ, बट यदि सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक से कितना डिफरेंस है वो पता चलेगा स्क्यूनेस से। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली नहीं हुआ है। ओके, दोनों ही साइड पे एग्जैक्टली नहीं हुआ, तो दोनों ही साइड पे जो डिफरेंस रह रहा है वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्यूनेस फाइंड किया जाता है। ओके, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कितने नहीं है वो पता चलेगा स्क्यूनेस से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स क्या होगा स्क्यूनेस का, उसके बारे में। ओके, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहां से मैं आंसर करूंगा। ओके, थैंक यू।